آپ کو بتائیں شانگلہ کے علاقے چکیسر میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملے میں اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید اور محرر سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید اہلکاروں میں اے ایس آئی حسن خان اور سپاہی نثار خان شامل ہیں۔ زخمیوں میں محرر ارشد خان، سپاہی ارشد خان اور رفت شامل ہیں۔ پولیس کا یہ بتانا ہے زخمی اہلکاروں کو بٹگرام اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ شانگلہ کے علاقے چکیسر میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی گناگر پر حملہ کیا ہے اور پولیس کے مطابق حملے میں اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید اور محرر سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، شانگلہ کا علاقہ ہے چکیسر، جہاں دہشت گردوں نے پولیس چوکی گنا نگر پر حملہ کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملے میں 1 اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید اور محرر سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ شہید اہلکاروں میں اے ایس آئی حسن خان، سپاہی نثار خان شامل ہیں۔ زخمیوں میں محرر ارشد خان، سپاہی ارشد خان اور رفعت شامل ہیں۔ زخمی اہلکاروں کو بٹگرام کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے کہا کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی اب بھی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے مگر بچنے کی امیدیں کم ہیں۔ جاں بحق پاکستانیوں کی لاشیں سفارت خانہ اپنے خرچ پر پاکستان بھیجے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے جانے والی 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے۔ کشتیوں کو حادثہ ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کے باعث پیش آیا۔ متاثرہ کشتی میں پاکستانی بچے بھی سوار تھے۔ انہوں نے والدین سے درخواست کی کہ اپنے بچوں کو ایسے خطرناک سفر پر نہ بھیجیں۔ کمیٹی has been formed اور اس میں جو ہے انہوں نے ان کو 5 روز کے اندر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ دیں جس میں جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں انوالو ہیں ان کو جو ہے کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ جو پاکستانی جو ہیں جو 5 تھے جیسے ایک شپ میں سے اس میں ایک بچہ ہے، جو 6 ہیں اس میں بھی ایک بچہ ہے، اسی طرح یہاں بھی۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ اب مائنرز بچے جو ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے، دیٹ از ویری سیریس۔ اور میری یہ التجا ہے جو والدین ہیں کہ اپنے مائنر بچوں کو تو مت بھیجیں آپ اس قسم کے خطرناک جو ہے سفر پر۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک غیر ملک کے اندر جو ہے کتنی مشکل کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ٹائم گزارا، اوروں کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے، اور پھر ایک جو ہے نامعلوم جگہ پہ جو ہے ہزاروں جو ہے فیٹ نیچے جو ہے وہ وہاں پہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈوب گئے۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کی دکھ بھری داستان۔ بتایا کہ جس کشتی پر سوار تھے اس کے نہ انجن ٹھیک تھے، نہ واکی ٹاکی، نہ جی پی ایس۔ چھوٹی سی کشتی میں 84 افراد کو سوار کرا دیا گیا تھا۔ بپھرے سمندر کی اونچی لہروں میں کشتی کارگو جہاز سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ درجنوں پاکستانی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے۔ کارگو شپ نے بچایا، کپڑے، موبائل سمیت سارا سامان بہہ گیا۔ مدد کی جائے، آئندہ کوئی غیر قانونی طریقے سے آنے کی کوشش نہ کرے۔ دفتر خارجہ نے یونان میں 1 سے زائد کشتیاں الٹنے کے واقعات میں 4 پاکستانی شہریوں کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یونانی حکام نے تازہ معلومات دی ہیں جس کے مطابق ایتھنز میں موجود مشن یونانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والوں کی مدد کی جا سکے اور جاں بحق افراد کی میتیں واپس لائی جا سکیں۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی کی صورتحال برقرار ہے۔ افغانستان سے آنے والی سرد ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے سے نظام زندگی مفلوج ہے۔ وادی زیارت شیلا باغ خواجہ عمران رینج میں درجہ حرارت -10 ریکارڈ کیا گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی میں -6 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ اسکردو -7، گلگت بلتستان -6 ریکارڈ، اسلام آباد 0، کوئٹہ 1، پشاور 2، مظفر آباد 4، لاہور ملتان 5، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ شیخوپورہ میں 587 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں 424، فیصل آباد میں 360، لودھرا میں 330، بہاولپور میں 298 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔
पारा चिनार में जहां तवील अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी खत्म होने से भी शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। ज़िला कुर्ब में फायरिंग के वाक़यात और कबाइल के माबैन झड़पों के बायस आमदरफ्त के रास्ते तवील अरसे से बंद हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल पारा चिनार में मौजूद हूँ। यहाँ मुख्तलिफ वार्ड्स में हालिया फायरिंग के वाक़यात के ज़ख्मी बच्चे और दीगर मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि गैस और अद्वियात और दीगर सहूलियात की कमी के बायस मरीज़ों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का कहना है कि आमदरफ्त के रास्ते जल्द खोले जाएँ। पारा चिनार समेत ज़िला कुर्ब में शदीद सर्दी की वजह से भी लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। खुश्क लकड़ी भी लकड़ी मंडी में ख़त्म हो गई है, जिससे अवामी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अवामी मसाइल के हल और आमदरफ्त के रास्ते खोलने के लिए मुज़ाकरात के साथ साथ दीगर इक़दामात भी जारी हैं। सर्दियों की ठंडी रातों में पुरसकून नींद के लिए रज़ाई लिहाफ सदियों से रिवायत का हिस्सा रही हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अवाम के रुझानात बदल गए हैं। अब ज़्यादातर लोग कंबल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बायस रुई से बनी रज़ाइयाँ और लिहाफ की मांग कम होती जा रही है। इस सनत से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जो बता रहे हैं अली नईम। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, रहन सहन के तरीक़ों में भी तब्दीली आ रही है। ज़माना क़दीम से लोग मौसम सरमा में रुई से बने बिस्तर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसके इस्तेमाल में बतदरीज कमी आ रही है, जिसकी वजह से रज़ाई और लिहाफ का कारोबार करने वालों का काम भी मुतासिर हो रहा है। रज़ाई में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। पहले हम लोग तकरीबन 70-80% तक हम चलाते थे, रुई बनाते थे, रज़ाइयाँ बनाते थे ना, रिपेयर करते थे। अभी जो है तकरीबन 40% तक हिस्सा आ गया इसका ना, रज़ाई का बनाने। रुई के बिस्तरों की खरीद व फरोख्त में कमी की बड़ी वजह मुल्की और गैर मुल्की दीदा ज़ेब कंबल और कोल्ट की खरीदारी है। इसके बावजूद अब भी कई लोग हैं जो रिवायती अंदाज से हाथ से बने रुई के बिस्तरों को तरजीह देते हैं। ख़ास तौर पर देही इलाकों में रहने वालों का मानना है कि रुई के लिहाफ और रज़ाइयाँ सर्दी से ज़्यादा मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। हैदराबाद की ठंड इतनी तेज़ होती है कि उसमें कंबल का जो है ना बहुत मुश्किल होता है सर्दी का बचना। रज़ाई इसको कवर करती है और रज़ाई बेहतर रहती है। हाथ से बनी रुई की रज़ाइयाँ और लिहाफ जो कभी एक घरेलू सनत की हैसियत रखती थीं, आज महंगाई और जदीद मसनूआत की वजह से ज़वाल का शिकार हैं। इस सनत से जुड़े कारीगर न सिर्फ बढ़ती हुई पैदावारी लागत का सामना कर रहे हैं, बल्कि ग्राहकों की दिलचस्पी भी कम होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस रिवायती सनत को बचाने के लिए सब्सिडी और दीगर अमली इक़दामात करे, ताकि ये विरसा जिंदा रह सके। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। यूनिवर्सिटी रोड कराची पर 84 इंच कुतर की पानी की लाइन फटने के बायस कराची के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। ये लाइन धाबीजी पंपिंग स्टेशन से पानी सप्लाई करती है और हालिया नुकसान रेड लाइन मंसूबे के दौरान होने वाली खुदाई की वजह से हुआ। 3 में से 2 रिसाव ठीक करके तीसरे की मरम्मत बुध तक मुकम्मल करके पानी फराहमी बहाल करने का दावा किया गया है। लाइन फटने के बायस गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, लाइन्स एरिया, लियारी और दीगर इलाके मुतासिर हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक रोजाना 150 मिलियन गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया ने अपने इजलास के बाद एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मदारिस एक्ट कानून बन चुका है, इसका फौरी तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा ये एक्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि सदर ने एतराज़ात वक्त गुजरने के बाद किए। स्पीकर ने भी एतराफ़ किया कि उनके नज़दीक ये एक्ट बन चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसका गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए और अगर हुकूमत गज़ेट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो दोबारा इजलास बुलाकर लाहमल तय करेंगे। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स
कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक़ राय से तय किया जाएगा और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी किया जाएगा। इसी प्रेस ब्रीफिंग से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम पार्लिमानी और आईनी रास्ते से मदारिस एक्ट का मसला हल करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम मुल्क में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जान चुकी कि हमसे हंसी मजाक करके बात मनवाई नहीं जा सकती। बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है और उसी के तहत ये सारी चीज़ मामला तय हुए हैं। लिहाजा अब जो इस वक्त उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन है, हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है। लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। हमारा मुद्दा इससे आगे नहीं है, हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उनको खूब पता चल गया है कि इनके साथ इस तरह की हंसी मुस्कुराहट में इनसे बात नहीं मनवाई जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक मदारिस के मामले पर मुतफ़िका बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वज़ारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहिदा भी इन्हीं अकाबरीन का है। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ 5 दूसरी तरफ 10 बोर्ड्स हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में ना डालें। इत्तेहाद तंजीमात को वज़ारत सनत या ज़राअत जिसके साथ मुंसलिक होना है उनका मसला है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज पार्ल में खेला जाएगा। 3 मैचों की मुश्तमिल सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। T20 सीरीज के बाद अब जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान के सामने एक और इम्तिहान है वनडे सीरीज का। ग्रीन शर्ट्स वनडे सीरीज के लिए पुरअज़्म है। पार्ल में होने वाले मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन किया। इसी दौरान सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान और जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउमा शरीक हुए। जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बाउमा वर्कलोड के सबब पहले वनडे में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह एडम मरकरम क़यादत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक 83 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें जनूबी अफ्रीका ने 52 मैचों में फतह पाई है, जबकि पाकिस्तान ने 30 मुकाबले जीते हैं। एक मैच फैसलाकुन साबित नहीं हो सका। वुमेन अंडर 19 एशिया कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रिवायती हरीफ भारत भी पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे चुका। वुमेन अंडर 19 एशिया कप में कोलालमपुर में खेले गए मैच में पाकिस्तान पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 104 रन बनाए। कोमल खान 38 और माहम अनीस 29 रन बनाकर नुमाया। नेपाली वुमेन अंडर 19 ने हदफ 6 गेंदों कबल हासिल कर लिया। नेपाली कप्तान पूजा मोहाटो 47 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तान की जानिब से कुरतुलैन और फातिमा खान ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी निजात बरतानवी फाइटर हैदर अली खान प्रोफेशनल फाइटर लीग में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर फुल कॉन्टैक्ट कैंडिडेट मिडल वेट चैंपियन प्रोफेशनल फाइटर लीग दुबई में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हैदर अली खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरहान से है, मैनचेस्टर में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो PFL वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। I'll be fighting for the PFL on the 25th of January in Dubai. Inshallah, when I'm victorious. इस मौके पर फाइटर हैदर अली खान के वालिद वाजिद खान और दिगर का कहना था कि हैदर ने दिन रात मेहनत की है और जल्द PFL वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुनिया भर में बरतानिया और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करेंगे। पहला एशियन पाकिस्तानी है जिसने PFL के लिए साइन किया है। इंशाल्लाह वो 25th ऑफ
जनवरी को फाइट करेगा इन दुबई में। तकरीब के आखिर में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने बॉक्सर हैदर अली खान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। हारून मिर्जा, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप के 13वें मैच में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस T20 कप के 13वें मैच में डॉल्फिन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए। कप्तान फहीम अशरफ 25 रन के साथ नुमाया रहे। ताहिर बेग और मोहम्मद अखलाक ने 19 रन स्कोर किए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, अरफात मनाज और इमाद भट्ट ने 2 विकेटें हासिल की। बंगल सही ने जवाब में पैंथर ने हदफ 15वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया। अब्दुल वाहिद बंगलजई 51 रन के साथ नुमाया रहे। दानिश अजीज ने नाकाबिले शिकस्त 38 रन स्कोर किए। एहसानुल्लाह और समीन गुल ने 2 विकेटें हासिल की। जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा चैंपियनशिप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मलिक हबीब। बिल्कुल मीरान शाह यूनुस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सूबा भर से 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फर्स्ट क्लास खिलाड़ी भी शरीक रहे। शायकीन क्रिकेट ने टूर्नामेंट को काफ़ी खुश आइन करार दिया और कहा कि वजीरिस्तान में इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करने से इलाके में मौजूद टैलेंट उजागर हो सकेगा। इस तरह के इवेंट्स शुमाली वजीरिस्तान के जवानों में क्रिकेट का जज्बा पैदा करता है। ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, अमन के लिए भी ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट था और हमने बहुत इंजॉय कर लिए। बहुत ज़्यादा तादाद में तमाशाई यहाँ पे मौजूद है। इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि यहाँ पे तमाशाइयों के लिए भी इनामात रखे गए हैं। मेहमान ख़ासूसी ने टूर्नामेंट के विनर और रनर अप टीमों में बेशबहा कीमती इनामात तकसीम की। टूर्नामेंट में दिलचस्प बात ये थी कि शायकीन को भी कुरानदाजी के ज़रिए इनामात से नवाजा गया, जिसमें मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल और दीगर इनामात शामिल थी। जी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि नवंबर में मुल्क खजाने में $700 मिलियन से जायद का सरप्लस आएगा, जिसके बाद माली साल के इब्तदाई 5 माह में $950 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। महंगाई अगले 3 माह कम रहने की तवक्को है, जबकि अगले साल के आखिर में महंगाई में इस्तेहकाम आ जाएगा। तनकीद जो करने वाले इदारे उनको तो कुछ ना कुछ तनकीद करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने ये तनकीद करनी शुरू कर दी है कि डॉलर बाइंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है डॉलर बाइंग अगर मार्केट के अंदर सरप्लस लिक्विडिटी है तो सेंट्रल बैंक बाई करेगा। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होता है तो हम उसमें सप्लाई भी करते हैं। इस साल जो है वो अभी भी अब पिछले जो पहले 5 माह इसके अंदर भी हमने बाइंग की हैं, तो इसके नतीजे में हमने ना सिर्फ अपनी डेट रिपेमेंट्स जो है वो टाइमली की हैं, बल्कि हमने अपने रिजर्व्स को जो है वो उसमें भी खतर का इजाफा किया। आर्टिफिशियल के ज़माना चला गया, ये तो अब बिल्कुल मार्केट डिटरमिन्ड है। हमने मार्केट के ऊपर चीज़ें छोड़ी हुई हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम इसको बड़ा क्लोजली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इस साल हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि पूरे साल के हमारे रिजर्व जो रेमिटेंसेस हैं इंशाल्लाह $35 बिलियन से ऊपर जाएंगे। ये नवंबर का तकरीबन $700 मिलियन से ज्यादा का सरप्लस आएगा। पहले 4 माह में हमारा सरप्लस जो है वो $200 मिलियन से ज्यादा है, तो टोटल मिला के ये तकरीबन $950 मिलियन का हमारा सरप्लस हो जाएगा पहले 5 माह के अंदर। हमने इंशाल्लाह माजी में जो गलतियां की हुई हैं उनको नहीं दोहराना। हमारा जो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल की अगर आप एवरेज देखते हैं तो वो 3.5% है। इस साल हमारा जो है वो ग्रोथ रेट जो है हमारी पिछले 10 साल की हिस्टोरिक एवरेज की तरफ जो है वो जा रहा है। इससे ऊपर इंक्रीज करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज भी इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। बहावल नगर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मजीद बता रहे हैं फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये मुहिम जो है वो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी, जबकि कैचअप एक्टिविटी जो है वो 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को की जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 5,92,575 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 8786 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 136 फिक्स, 2562 मोबाइल टीमें और 88 जो हैं वो ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भून का ये कहना था कि शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी में शामिल हो, ताकि हुकूमत की जानिब से जो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है इसे कामयाब किया जा सके।
पाकिस्तान में ज़राअत मईशत का अहम सतून है और किसान बेहतर पैदावार के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। ताहम इन केमिकल्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल इंसानी सेहत और माहौल पर संगीन असरात डाल रहा है। मुर्तज़ा चमन की रिपोर्ट देखिए। फसलों की पैदावार बढ़ाने और कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसान मुख्तलिफ किस्म की कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। ये अद्वियात फसलों को नुकसानदेह हशरात तो महफूज रखती हैं, लेकिन उनके इंसानों और माहौल पर असरात तशवीश का बाइस बनते जा रहे हैं। मैं और मेरी भाभी गांव से आ रहे थे तो रास्ते में जो है फसलों को स्प्रे देते हैं, उसकी वजह से हमें सांस का मसला बताया, मुझे भी मेरी भाभी को भी। माहिरीन सेहत के मुताबिक कीड़े मार अद्वियात के अज्जा में मौजूद केमिकल कई बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। ख़वातीन और बच्चों पर उनके असरात ख़ास तौर पर ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। दही इलाके से हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं जो खेतों में काम करती हैं, उनमें ये होता है कि जब पेस्टिसाइड्स का स्प्रे या जो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, उसकी वजह से हमला ख़वातीन में मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि कीड़े मार अद्वियात न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि ज़मीन और पानी की आलूदगी का भी बड़ा ज़रिया हैं। डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में हिफाजती इक़दामात को अपनाने से सेहत के मसाइल को कम किया जा सकता है। किसानों के लिए तरबीती प्रोग्राम्स, हुकूमत की निगरानी और महफूज मुतबादल की तशहीर इस मसले का हल हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट। मुल्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं जवादत नदीम। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम मुकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन के फ़न को परवान चढ़ाने के लिए इनके हाथ से बनाई हुई अशिया को दुनिया के सामने पेश किया गया। ख़वातीन दस्तकारों के मुख्तलिफ अशिया के 40 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्तान में एक नया ट्रेंड शुरू किया एग्जीबिशंस का। वर्चुअल काम करने वाली जो हमारी फीमेल्स हैं जो अपने घर में बिज़नेस कर रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको हम फिज़िकल बूस्ट देने के लिए और रिकग्नाइजेशन देने के लिए कि ये एग्जीबिशंस हम मुनक़िद करवाते हैं। ख़वातीन दस्तकारों की ये स्टॉल्स इनके हौसले और हिम्मत का सबूत थे, जिनमें बेकरी, शॉल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बुरके, जूट की अशिया और ख़ास मुल्तानी कढ़ाई वाले कपड़ों के स्टॉल्स भी शामिल थे। मैं ये हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ जूट की रस्सी से ना, और मेरी वर्कशॉप घर पे ही है, मैं घर में ही ये सब चीज़ें बना रही होती हूँ। मेरे पास सारा हैंडमेड स्टफ़ है, लाइक एम्ब्रॉयडरी हो गई, रली वर्क हो गया, ब्लॉक प्रिंट हो गया, फैब्रिक पेंट हो गया। बल्कि मैंने कुछ क्रोशेट्स बाय किए हैं। देयर वाज एन आंटी, शी वाज सेलिंग इट एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि आप ख़वातीन को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो अपना आर्ट या अपना काम सेल कर सकती हैं। कम पैसों से इन ख़वातीन ने न सिर्फ अपने कारोबार शुरू किए बल्कि दर्जनों ख़वातीन को मुलाजमत भी फराहम की। ख़वातीन के हुनर को फ़रोग देने के लिए उनकी माशी खुदमुख्तारी के लिए किया गया ये इक़दाम एक रोशन मिसाल है, जो न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर की हुनरमंद ख़वातीन के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। कैमरामैन मोतसिम क्लासरा के साथ जवादत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।